Chapter number 4 is magnetic effect of electric current. First topic is Oersted observations. In 1820, a great scientist Oersted observed that an accelerated charge is a source of magnetic field. According to him, where there is a current, there is a magnetic field. A current carrying conductor, if a compass needle is placed around a current carrying conductor, then there is a deflection in the compass needle. Actually, what is compass needle? Compass needle is a tiny magnet, a small magnet. It means when a compass needle, this is a compass needle here, when a compass needle is placed in a current carrying conductor, there is a deflection produced in the compass needle. Actually, why this deflection produced? Because this current carrying conductor is generating magnetic field, and if this is generating magnetic field, then magnetic field generated by this conductor and magnetic field of the compass needle, both magnetic field will interact with each other. And if suppose that the switch is on, then current I start flowing along this direction, and there is a attraction in the compass needle. North pole get attracted toward this wire. It means there is a production of south pole here. That's why, and this south pole is repelled. But on the other hand, if I reverse the polarity of the current, then there is a opposite deflection. The north pole of the compass needle get deflected away from the wire. It means there is a production of same pole here. That both magnetic field interact with each other. I have only the first statement here. An accelerated charge is a source of magnetic field, and we shall prove in the next lectures why an accelerated charge is a source of magnetic field. So let us start, students. The first topic is, now first of all let us understand what is a magnetic field. What is a magnetic field and how an accelerated charge produced magnetic field. You had already studied in the lower classes a bar magnet. This is a bar magnet, this is a north pole, and this is a south pole. North pole generates magnetic field. This is the magnetic field is in the form of ring generated, and we are supposed we know that magnetic lines of forces, they exit from the north pole and they enter into the south pole. This is the information about the magnetic lines of forces we have. अभी तक हमें यही पता है. तो let us understand why this ring generated when a charge moves. Actually, what happens? Suppose that we have a wire, and this end of the wire is connected with the positive polarity, and this is with the negative polarity. When an electron move from this end to this end, suppose that there is a vacancy and there is a position of the electron, then the इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पे था इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चला और इसका सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया. देन आई विल से दैट पॉजिटिव साइन से चार से लाइंस निकलती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती है, एंड दिस फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर. आई थिंक सो दिस इज द ring formation. So we have only a single statement till an accelerated charge is a source of magnetic field. हम इसको प्रूव करेंगे आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर doing anything, let us start with the Boyd-Savart law. Boyd-Savart law. What is a Boyd-Savart? Let us suppose that we have a current carrying conductor. This is a wire carrying current I. I is the strength of the current, and suppose there is a small element, small portion of this wire having length dl, in which current I is flowing. Let us suppose that we have a point P here at distance r, from the conductor. Here point P, if I put the compass needle here, there is a deflection in the compass needle. Then let us suppose that this small element generating magnetic field dB magnetic
field. The direction of the magnetic field can be find out by right hand thumb rule. How? Hold the pen like this way. Hold the pen like this way. Then my thumb points the direction of electric current and my curled fingers points the direction of magnetic field. थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. सपोज दैट ये करंट है, तो करंट ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं तो मेरे अंगूठा का डायरेक्शन जो है ये करंट बता रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस तरीके से. अगर इस तरीके से करेगा तो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन में जो है ये डायरेक्शन बना मैग्नेटिक फील्ड का. तो यहाँ पे लाइंस एंटर कर रही है, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हुआ, यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ. और फिजिक्स में साउथ पोल जहाँ पे जनरेट होता है उसको हम क्रॉस से मैग्नेट रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट. अगर जो है करंट का डायरेक्शन जो है डाउन है, देयर इज़ अ डाउन, देन व्हाट हैपन, देन डाउन, तो मैं थंब ऐसे कर लूँगा और मेरा उंगलियों का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. करंट डाउन, करंट डाउन, तो जो है व्हाट हैपन, तो रिंग कैसे बनेगा, इधर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, इधर साउथ पोलैरिटी आ जाएगी. यहाँ से लाइन जो है, यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से लाइन निकलेगा, यहाँ से लाइन निकलेगा, तो ये नॉर्थ पोल डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जहाँ पे लाइन एंटर करेगा उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हियर करंट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ करंट है, तो इस तरह से तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ एंटर करेगी अंदर की तरफ, तो इसको मैं क्रॉस से लिख सकता हूँ. राइट. This is a small element dl, and let us suppose that there is an angle theta between the small element dl and the position vector, and this small element generating the magnetic field dv. Let us suppose that dv is the magnitude of the magnetic field. Now let us understand according to Boyd-Savart law on what factors this magnetic field depends. According to Boyd-Savart law, he stated that the statement given by the Boyd-Savart law, the magnetic field dv is the magnitude of the magnetic field generated by this element at point P. Then on what factors? He stated that number one, he stated that the magnetic field, strength of magnetic field depends upon the current, strength of the current in the wire. And number two, the second I, after I, he stated that dl, it also depends upon dl, length of this element in which current I is flowing, and he also stated that it is directly proportional to sine of the angle between dl and r. This is important to remember here. Theta is the angle between dl and r, and he also stated that it is inversely proportional to square of the distance from the element to the point P observation where we wish to see the magnitude of the magnetic field. So this is a statement given by Boyd-Savart. So dv is equal to, I will remove proportionality sign in magnetic field. This is when removed, we have a constant k, and this is equal to I dl sine theta divided by r square again. So magnetic field db इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो मेरे पास जो है कांस्टेंट का वैल्यू, के का वैल्यू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई. इलेक्ट्रोस्टैट में आपने देखा होगा हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है, लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म इट इज़ म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई. आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर. द वैल्यू म्यू नॉट ये नया कांस्टेंट है आपके लिए. दिस इज अ परमिएबिलिटी of free space. जिस भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कितना परमिशन देता है वो मीडियम, दैट इज परमेबिलिटी. जैसे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैट में परमिटिविटी था, तो यहाँ पे परमेबिलिटी. जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट साथ में ही आएगा, और म्यू नॉट जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आता था, इसमें म्यू नॉट आएगा सभी आर्टिकल्स में, सभी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो दिस इज परमेबिलिटी एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू Boyd-Savart. म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷. और इसके यूनिट क्या बनेंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड के हो गए टेस्ला,
एक डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, उधर को जाके मीटर, और करंट डाउन में आ, करंट जो है डाउन में आएगा तो इसके बन जाएंगे पर एम्पियर, ये इसके यूनिट हैं। और यू कैन से दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। So this is the Boyd-Savart law. Now let us see its vector form. मेरे पास एक्सप्रेशन है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। मैं R से मल्टीप्लाई कर दूंगा और R से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dV इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl आफ्टर दैट R, उसके बाद साइन थीटा एंड डिवाइड बाई R स्क्वायर और R दैट इज R क्यूब। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड dV इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl R साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B, सो मैं इसको लिखूंगा dl क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब। सो ये वेक्टर फॉर्म में दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म मुझे डायरेक्शन बताता है, तो dl क्रॉस R, इफ आई हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर dl एंड R, मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर dl ये है, ये dl का डायरेक्शन है, और ये R का डायरेक्शन है थीटा। तो dl से जब मैं R की तरफ इसको रोटेट करूँगा dl क्रॉस R, राइट, तो दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाई विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू रूल। मेरे हाथ में स्क्रू है, मैं स्क्रू को राइट साइड रोटेट करूँगा तो स्क्रू जो है अंदर की तरफ जाएगा, बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ किसी तरह से स्क्रू को, तो ये स्क्रू है, दिस इज़ द डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो इसको मैं क्रॉस से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया और इसको मैं साउथ पोल बोलूँगा। अगर अपोजिट है R क्रॉस dl, तो मैं स्क्रू को ओपन करूँगा, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा तो क्रॉस की जगह मैं इसको डॉट कर दूंगा। तो dl क्रॉस R जो है, dl और R दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, बट dl क्रॉस इज जस्ट परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन एज यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन 11th फिजिक्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट। सो dl क्रॉस R मुझे डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन समझना जरूरी है क्योंकि हर जगह डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड के। So from Boyd-Savart law I have dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta upon R square। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था हमने, सिंगल चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, तो डी का मैग्नीट्यूड कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या सिमिलरिटीज़ हैं इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, so electric field is also inversely proportional to distance, so these are long range fields, and here magnetic field is generated by the current, but here the electric field is generated by the charge। so यहाँ पे let us suppose that theta is equal to 0 डिग्री। केस नंबर फर्स्ट, थीटा मीन्स DL और R के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है, तो DL और R के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री कब होगा, ये पॉइंट P था और ये R था और ये DL पोर्शन था और ये एंगल थीटा था, इनके बीच में एंगल 0, इसका मतलब P पॉइंट इस कंडक्टर पे लाई कर रहा है, पॉइंट P लाइज ऑन द कंडक्टर। अगर पॉइंट P लाइज ऑन द कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई DL साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई R क्यू, साइन 0 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0
और एक्सपेरिमेंटली बॉयड सेवर्ट ने ऑब्जर्व किया होगा कंपास नीडल रख के, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्चुअली होगा भी नहीं क्योंकि रिंग बनेगा इसके अराउंड, तो यहाँ पे इसके बाहर जो रीजन्स हैं वहाँ पे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। दूसरा केस, अगर मैं थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू आई टेक 90 डिग्री, 90 डिग्री का सीधा मतलब है ये है एंगल, ये है आर और ये पॉइंट पी, और ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है और ये पोर्शन डी एल है। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो मैं बॉयड सेवर्ट लॉ लगा के डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। साइन 91 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास आया दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 91 हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा ही। यहाँ पे इस तरह से ये मेरे पास कंडक्टर है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे ये जो परपेंडिकुलर है आर इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे जो है इस तरह से रिंग बनेगा, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो रिंग ऐसे बनेगा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, लाइन अंदर को जा रही है और यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयड सेवर्ट